أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ਮੁਖੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਮੁਖੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਮੁਖੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਚਿਹਰਾ ਉਠੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਰੱਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ, ਚਿਹਰਾ ਉਠੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਰੱਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਉਂਗਲੀ ਉਠੇ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਹਲੀਲ ਕਰੇ। ਬੰਦ ਮੁਠੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਲੱਬ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦ ਵੀ ਆਕਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਬ ਮੁਬਾਰਕ ਜਦ ਵੀ ਆਕਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੁਰਆਨ ਜੋ ਆਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੂ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਔਰ ਹਮਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਦਮ ਆਕਾ ਪੜਨਾ ਏ, ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਨਾ ਏ। ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਏ। सामाईन मोहतरम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, रात का ना एक क्लिप वेख्या भाई जाहद, वो ना मौलवी स्पीकर नूं लग्या, स्पीकर सी शार्ट ते बेचारा उत्थे फौत। मेरा ना जदों दा आया ना मैं डर लगदा, मैं करीब हुन्ना ते मैनूं क्लिप याद आ जांदा। तो दुआ करो अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए ते उलमाए कराम दी अल्लाह हिफाजत फरमाए। माहे शुबान दा इस वक्त आगाज़ हो चुके हैं। मैं अल्लाह सुबहानहू व तआला दी तौफीक रहमत दे नाल
کوشش کراں گا کچھ ماہ رجب دے متعلق اگر وقت نے ساتھ دیتا، ورنہ ماہ شعبان دے متعلق چند گزارشات، یہ کی فضائل نے، یہ مہینہ ساڈے واسطے کتنی اہمیت دا حامل ہے، میں اس دے متعلق چند گزارشات قرآن اور احادیث دی روشنی اندر رکھن تو پہلے جڑی بنیادی طور تے کچھ گزارشات کرنا چاہنا، اس بنیادی طور تے گزارشات دی طرف توجہ کرنا۔ ایک عام لفظ ہے، تساں بھی سنیا ہے عام معاشرے اندر، سنت، کہ اے کی یہ نبی دی بولو سنت۔ سنت دے اندر نا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جتھے سنت آ جائے نا، معاشرہ ماندا ہے منے، دل ماندا ہے منے، نہیں ماندا نہ منے، بظاہری طور تے تانوں او دے اندر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن وہ نقصان نہیں، کیونکہ نبی دی ہر بات حکمت دے نال بھری ہوئی۔ یہ کیڑی چیز دی ہوئے گی بھلا؟ اے جڑا نا اینو کھولو، اے ہاں ہن ٹھہر جو۔ نبی دی ہر بات، ماسٹر تھوڑا جا کٹا کے ویکھو، ماسٹر تھوڑا جا، ہر بات دے اندر حکمت ہی حکمت ہے، سنت دے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور سنت دے مد مقابل ایک تساں عام گردش کردہ لفظ سنیا ہونا ہے، بدعت۔ کی لفظ ہے؟ بدعت، با بے دال عین تے، بدعت۔ بدعت دا معنی ہوندہ ہے لغوی نئی چیز۔ اللہ پاک نے اس چیز نو بنایا نویں سرے تو، اس کاریگر نے اس چیز نو بنایا نویں سرے تو۔ جیڑی چیز نویں سرے تو بنے انہوں کی کہندے نے بدعت۔ بدعت جیڑی ہے نا گمراہی، بدعت دے اندر بظاہر طور تے تانوں کنا بھی حسن نظر آ جائے، بظاہر طور تے کنا فائدہ نظر آ جائے، لیکن بدعت دے اندر نبی دے امتی مسلمان واسطے ضلالت ہی ضلالت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گمراہی۔ بدعت جیڑی ہے نا انتہائی بری چیز ہے۔ بدعت اتنی بری چیز ہے، اگر عمل دے اندر ایک بدعت آ جائے، اللہ پاک زندگی دے تمام اعمال نو باطل تے برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ بدعت اتنی بری چیز ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، بدعتی آدمی جڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امانت دے اوپر بھی یقین نہیں رکھدا۔ کس طرح؟ بدعتی بندہ جڑی بدعت جاری کردا ہے، جڑا کام دین اندر جاری کردا ہے، وہ یہ کہندا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی پاک نے ساڈے تک دین پہنچان دے اندر خیانت کیتی سی، لہذا میں آ کے اس گل نو پوریاں کیتا ہے، اے دین دے اندر اے چیز دی کمی سی، لہذا میں پوریاں کیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، بدعتی شخص اتنا ذلیل اور برا انسان ہے، بدعتی شخص اس قدر گریا ہویا انسان اور بندہ ہے کہ وہ بندہ نبی پاک دی امانت دے اوپر بھی یقین نہیں رکھدا۔ بدعتی شخص اتنا بد نصیب اور اتنا برا ہے، اور بدعت اتنی بری چیز ہے کہ جڑا بدعتی بندہ ہے پیغمبر دی ختم نبوت دا بھی انکاری ہے، یعنی کہ وہ دستا ہے کہ نبی پاک نے دین نو مکمل نہیں سی، نہ آیا سی نہ پہنچایا سی، لہذا میں دین نو آ کے مکمل کیتا ہے۔ اے جڑا میں کام کر رہا یہ نبی دے علم اندر تے نہیں سی لیکن میرے علم اندر ہے، لہذا اینو دین سمجھ کے کرو، اینو دین سمجھ کے اپناؤ۔ بدعتی شخص اتنا برا ہے اور بدعت اتنی بری چیز ہے کہ بدعتی شخص نو روایت صحیح البخاری اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے حوض تو بدعتی شخص نو ہٹا دیتا جائے گا، سحقن سحقن سحقن، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ یہ تے میرے امتی ہے۔ فرمایا ہاں ہے تیرے امتی نے، لیکن تواڈے جان تو بعد انہاں نے دین اندر ایسیاں بدعات نو جاری کر دیتا سیگا کہ تواڈی امانت دے منکر بن کے تواڈی ختم نبوت دے، لہذا تواڈے حوض تو انہاں نو پیچھے ہٹا دیتا جائے۔ بدعت اتنی بری چیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی اندر بدعتی شخص دے سلام دا کدی جواب نہیں سی دیتا۔ بدعتی اس قدر برا انسان ہے اور بدعت اتنی بری چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت
ਫਕਦ ਆਨਾ ਅਲਾ ਹਾਦਮਿਲ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਦਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੌਕੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਿਰਾਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਬਿਦਤੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਦਤੀ ਸ਼ਖਸ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੌਕੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिदत इतनी बुरी चीज़ है। बिदती के ऊपर रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक की लानत होए, फरिश्तियां की लानत होए ते तमाम इंसानां की लानत होए। बिदती शख्स का ना अल्लाह नफल कबूल करता है, बिदती शख्स का ना अल्लाह फर्ज कबूल करता है। जिस दे अमाल अंदर बिदत आ गई है उसका हज ज़ाया हो जाएगा, जिस दे अमाल अंदर बिदत आ गई है उसके रफल यदैन ज़ाया हो जाएंगे, जिस दे अमाल अंदर बिदत आ गई है उसका उमरा ज़ाया हो जाएगा, जिस दे अमाल अंदर बिदत आ गई है रात दियां तहज्जुदां बर्बाद हो जाणगियां, जिस दे अमाल अंदर बिदत आ जाएगी उसके सदकातो खैरात, उसका इतकाफ, उसका रमज़ान, उसकी सैरी, उसकी अफतारी, अलगरज जिंदगी दे सारे अमाल उस बंदे दे बर्बाद हो जाएंगे जिहदी जिंदगी अंदर बिदत आ गई। अच्छा, एक सवाल पैदा ज़ाहरी बात होएगा, तुसी कहोगे हज़रत तुसी बार हा बार बिदत बिदत कर रहे हो, बिदत इतनी बुरी चीज़ है, बिदती शख्स इतना बुरा इंसान है, आखिर बिदत आंदे किन्नू में, बिदत किस बला दा नाम है, बिदत की तारीफ की है, बिदत की पहचान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मैं मुतालिया करना शुरू किया। आप दी तकरीबन 23 साला दौरे नबूवत जिहड़ी है इहदे अंदर आप दी जिंदगी दे मैं तमाम खुतबात नूं इकट्ठियां करके देखे है। आप दी जिंदगी दा कोई खुतबा ऐसा नहीं मिलिया जिहदे अंदर आपने बिदत दा रद्द ना कीता होए। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हुण तुसीं खुद पढ़े लिखे हो, अगर थोड़ी जी तवज्जो करो तो बात बड़ी आसानी दे नाल समझ आएगी। मैं हूँ तुहाडे कोल जुम्मा पढ़ाते हैं, तकरीबन मैनू 10 साल हो गए, साल हो गया, चलो याद है तुहानू, साल हो गया। मैं हर जुम्मे अंदर बिदत बिदत करता रवां, बिदत दा रद्द करता रवां, ते 2 3 4 जुम्मे तुसीं सबर कर लोगे, 5वें 6वें जुम्मे कहोगे मौलवी जी तुहानू होर गल कोई नहीं आउंदी। सानू लग गई है समझ, तुहानू होर गल कोई नहीं आउंदी, हर वारी बिदत 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 करते रहिंदे हो। मैनू दसो, नबी पाक ने 23 साल खिताब किया है कि बिदत दा रद्द किया है, 23 साल। यानी बिदत इतनी बुरी चीज़ है कि मेरे पैगंबर का कोई खुतबा उस वक्त तक खुतबा कहलाता नहीं सी, पूरी तकरीर नहीं सी होंदी जब तक बिदत दा रद्द ना कर लें। फरमाया कुल्लु बिदअतिन, कुल हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम दी अग है, जहन्नम दी नार है। लिहाजा बिदत इतनी बुरी चीज़ है। बिदत आंदे किन्नू ने, बिदत किस चीज़ का नाम है? बिदत ऐसा काम जिन्हों सवाब समझ के कीता जाए, ऐसा काम जिन्हों सवाब समझ के सवाब की नीयत ना कीता जाए, और उस काम का ना कुरान अंदर सबूत होए ते ना हदीस अंदर सबूत होए, ना पैगंबर दे सहाबा दे आसारात दे कोलों बात साबित होए, और ना ही वो कम दीन अंदर मना होए, उन्होंने की कहते ने बिदत। लिहाजा दीन इस वक्त साढ़े ते मुकम्मल हो चुके हैं, पूरा हो चुके हैं। खत्मे नबूवत का माना ही ये वे कि दीन मुकम्मल हो गया है, यानी मोहर लग चुकी है, आज के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। हुण नबी पाक पैगंबर दी शरीयत चलेगी, जो पाक पैगंबर के ऊपर दीन मुकम्मल कामल अकमल होया है, वो तुहाडे मेरे वास्ते सवाब है, वो दीन है, वो शरीयत है, वो इस्लाम है। इस तो हट के जितना भी खूबसूरत अमल असी बनावांगे करांगे, लिहाजा वो दीन का हिस्सा बन सकता, वो बाइसे अजर ते सवाब बन सकता नहीं बन सकता। जदों भी तुसां बिदत का रद्द करोगे ना, बिदत बिदत कहोगे तुसी, तुहानू जवाब दे अंदर पता की मिलेगा सुनन वास्ते?
ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਦਤ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖੀਏ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ, ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਦਤ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਦਤ ਬਿਦਤ ਬਿਦਤ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਿਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਦਤ ਨੇ। ਦੱਸ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਦਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਰਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਰਾਬ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਰਾਬ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਇਰਾਬ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਬ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਬ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਹज्जाज बिन यूसुफ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। हज्जाज बिन यूसुफ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਰਾਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਰਾਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੋਲੋ ਬਿਦਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਇਰਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਇਰਾਬ ਲਗਾਏ ਹज्जाज बिन यूसुफ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲਗਾਏ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਰਾਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ, 500 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਰਾਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? आपने इराब पढ़े ने, अलबत्ता बज़ाहरी तौर ते लिखन दे अंदर लगाए नहीं सी गए, लेकिन पढ़े ते मेरे पैगंबर ने वे। इराब तो बगैर तुसा एक हरफ कुराने पाक दा नहीं पढ़ सकते। वो तो एक सहूलत वास्ते बाद दे अंदर देखा गया कि अजमी लोगों वास्ते बहुत मुश्किल है। अरबी इल्म चलो लोग माहर ने, जानते ने इस इलम नो, इस इबारत नो, लिहाजा अजमी लोगों की आसानी वास्ते मैं क्या लगाए हज्जाज बिन यूसुफ ने पैगंबर के दौर तो बाद, पैगंबर की गैर मौजूदगी अंदर, लेकिन पढ़े ते पाक पैगंबर ने, लिहाजा बोलो इराब कुराने पाक दे बिदत नहीं। कहता फिर एक मेरा होर सवाल है, वो हल कर। मैं किहड़ा सवाल है? अच्छा आंदा कुराने पाक दे इराब बिदत नहीं, तो मैनूं पता तुसीं जवाब जूब तो कढ़ लेंदे। चलो अच्छा, ये तो गल तुहाडी समझ साडी समझ आ गई है। तो साडा दूसरा सवाल ये वे, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਨਾਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਦਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਜਮਾਏ ਉਮਤ ਹੈ, ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਬ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਲ ਮੁਸਲਮ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ 'ਚ? मैं क्या नबी पाक ने फरमाया मेरे तो बाद ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान ते जिंदा ने, वो ज़मीन ते आन के कुरबे क़यामत, क़यामत दी निशानियां अंदरों वो ज़मीन ते आन के।
ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਮੀਨਾਰ ਬਿਦਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਿਹਰਾਬ ਫਿਰ ਬਿਦਅਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੈ ਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਿਹਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਹੁਆ युसल्ली, आयत ज़हन के अंदर नहीं आ रही, आयत हैगी है वाहुआ काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। इस हाल दे अंदर कि मेहराब दे अंदर खड़े सन। मैं मेहराब का जिक्र तो कुरान अंदर आ गया। कह लगे जी वो मेहराब तो मुराद है अलग कमरा। मैं क्या ये भी तेरी गल गलत है? कह लगा किवें? मैं मेहराब तो अलग कमरा अगर होवे, हज़रत ज़करिया दी शरीयत अंदर मस्जिद तो बाहर तो नमाज नहीं सी होंदी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी शरीयत अंदर मस्जिद तो बाहर नमाज नहीं सी होंदी, लिहाजा मेहराब मस्जिद दे अंदर सी, मस्जिद दा हिस्सा सीगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे सन, नमाज पढ़ रहे सन मस्जिद दे मेहराब दे अंदर। मेहराब दा जिक्र आ गया है कुरान अंदर। बोलो मेहराब बिदअत? मेहराब बिदअत कोई नहीं। और चौथे नंबर ते कह लगे फिर ये दसो कि चल ये भी बिदअत कोई नहीं, तो यह जड़ियाँ तुसी बसां ते कारां बड़ियां वन सवनियां लैके ते मौलवी जी तुसी जड़ा ना एडे एडे लंबे सफ़र करते हो, फलानी कार फलानी गड्डी, ये बिदअत कोई नहीं। मैं क्या ये बिदअत नहीं? अल्लाह दे बंदे बिदअत की तू तारीफ नहीं पढ़ी। इनू असी दीन समझदे, बस नू ट्रक नू असी दीन समझदे, एक सहूलत है ना। ये बस ट्रक ए घड़ियां दे बिदअत ने पाइयां ने, तुसी इनू असी दीन समझदे। मुआवन जरूर है लेकिन इनू असी दीन समझदे, इनू असी दीन नहीं समझदे। तो ये जी डोल जे होली जी कह दो कुल दीन कोई नहीं, अल्लाह की कसम असी तुहाडे नाल हां। इंजी होला होली जी कह दो साता चलीसवां दीन कोई नहीं, तो कराई रखो, सानू कोई इतराज़ नहीं। जदों कहोगे ना दीन है सवाब है, उदों बनेगा इख्तलाफ। असा कहांगे कुरान हदीस विखाओ, फिर तुसी कहंदे हो कि सानू बार बार बिदअत दे फतवे। अल्लाह दे बंदो, ए जड़े बस ट्रक ए चीज़ जड़ियां सवारियां ने मुआवन जरूर है, बोलो दीन है नहीं। कहता जी मैं तुहाडी हर गल मान लांगा, ए बस ट्रक नबी पाक दे दौर च साबित कर दे। मैं कहा कुरान च हैगा ट्रक का जिक्र, कुरान च हैगा बस का जिक्र, कुरान च हैगा कार का जिक्र, कुरान च हैगा जहाज का जिक्र। कह लगा किथे लिखे है? मैं कुरान पाक सूरह नहल दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, सोने महबूबा ए खच्चर घोड़े गधे ये तुहाडियां सवारियां ने। ते अगे पता की ऐलान फरमाया अल्लाह पाक ने, ए मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, व यखलुकु माला व यखलुकु माला तालमून। ए सोने महबूबा ए खच्चर ते ए घोड़े ए ऊंट तुहाडियां सवारियां ने, और इन्हां तो बाद मैं ऐसा वक्त लैके आवांगा, ऐसियां ऐसियां चीज़ां पैदा कर देवांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ भी इलम अंदर कोई नहीं, किसी दे इलम अंदर कोई नहीं। मैं क्या कार दा जिक्र दे अंदर आ गया, बस दा जिक्र दे अंदर आ गया। मैं क्या उस वक्त नहीं सी लेकिन रब दे इलम अंदर जरूर सी। अल्लाह पाक ने ओदा जिक्र फरमा दिता। प्यारिओ हदीस हदीस नू हदीस समझ के मनो। मेरे पाक पैगंबर दी हर बात दे अंदर हिकमत है, नबी पाक दी हर हदीस दे अंदर बरकत है। और बिदत हर तरफ गुमराही गुमराही है, बिदत जलालत ही जलालत है। फिर कहते ने यार चल अच्छा इन्हां दा जवाब दे दिता, जिहड़ा असी काम करने आ ये बुरा तो कोई नहीं, जिहड़ा असी काम करने बुरा तो कोई नहीं। असी की करने आ? स्कूलों के अंदर कुरान ही पढ़िया जाता है, कुरान पढ़ना मना है? मैं क्या नहीं मना। असी जिक्रो ज़कार ही करने आ, ये मना है? मैं क्या नहीं मना।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਰਜਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਏ 22 ਰਜਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15ਵੀਂ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਆਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ। रोज़ा रखना मना है? मैं किया नहीं मना। वन सवन्ने खाने बनाना मना है? मैं किया नहीं मना। बनाओ, तकसीम करो, सदका खैरात करो। मैं किया ये काम चंगा है बज़ाहरी तौर पे। मना कोई नहीं कुरान पढ़ना, लेकिन जेड़े तरीके दे नाल करते हो बोलो ये तरीका मेरे पैगंबर दा नहीं। अगर तसल्ली ना होए मैं तुहानू एक सुनन दारमी दी रिवायत सुनाना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु दसिया गया, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी मस्जिद दे अंदर कुछ लोग इकट्ठे हो के कैंकरा कट्ठियां करके अपने अगे रख के बैठे ने, खजूर दियां गठलियां रख के अगे बैठे ने, उन्हां दे ऊपर पढ़ रहे ने ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये लोग मस्जिद के अंदर कट्ठियां हो के पढ़ रहे ने। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के अंदर गए ने, जाके कह लगे वो अल्लाह दे बंदो केड़ा नवा काम शुरू कर दिता है? ये सारे दे सारे उठ के आके कह लगे ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद असां पूरा काम ते कोई नहीं कीता, ला इलाहा पढ़ना कोई मना है? फरमाया कोई मना नहीं। अल्लाहु अकबर पढ़ना कोई मना है? फरमाया नहीं मना। हाँ ला हौला वला कुव्वता पढ़ना मना है? नहीं पढ़ना। फरमाया कि हाँ मना कोई नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते ने ये सारे जिक्र नबी पाक दी हदीस अंदरों साबित है। ये तरीका जड़ा है तुहाडा नवा है, ये पढ़ना मना नहीं, लेकिन तरीका तुहाडा पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक। ऐ गल असी आने कुरान पढ़ना मना कोई नहीं, लेकिन जेड़े तरीके दे नाल खाना रख के उत्ते चारे कुल पढ़दे हो तरीका मेरे पैगंबर दा नहीं। अगर इंज समझ ना आए मैं बड़ी आसानी दे नाल लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बड़े खुले ज़हन ना बैठना है और बात सुननी है। अगर तुहानू कोई इख्तलाफ होए मैं इत्थे हां, तुहाडे एक एक सवाल दा मैं कुरान चो हदीस चो जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। कोई मेरा भाई, कोई मेरा जवान, कोई मेरा बुजुर्ग बगैर किसी झिझक दे मेरे को आके बड़े अदब दे नाल मैं इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ एक एक सवाल इतराज़ का जवाब देवांगा। मेरी जितनी गुफ्तगू होए ਇਹਦੇ अंदर किसी नू कोई किसी किस्म का इतराज़ होए, लेकिन बड़ी तवज्जो दे नाल मेरी गुजारिशात नू सुनना है। मैं किसी दी मुखालफत दे अंदर नहीं बल्कि अहादीस पढ़ता जावांगा ते मसले दी वजाहत करता जावांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते ने ला इलाहा पढ़ना मना कोई नहीं, अल्लाहु अकबर पढ़ना मना कोई नहीं, लेकिन जेड़ा तुहाडा तरीका है ये तरीका पैगंबर दी सुन्नत तो साबित कोई नहीं। मस्जिद दे अंदर सारे इकट्ठे हो के बह जाओ और गठनियां लैके उहदे ते पढ़दे रहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ए जेड़ा इज्तिमाई तुहाडा जिक्र है ये अहादीस अंदरों पैगंबर दी सुन्नत तो साबित कोई नहीं, अल्लाह दे कुरान तो साबित कोई नहीं। जिक्र करो तन्हाई अंदर बह के करो, मना कोई नहीं, लेकिन जेड़ा तुहाडा अंदाज है तरीका है ये तरीका पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला तरीका नहीं। यही बात असां गली गली ते नगर नगर कहने आ प्यारिओ सदका करो खैरात करो, लेकिन तरीका पैगंबर दा होए। नमाज पढ़ो तरीका पैगंबर दा होए, हज करो तरीका पैगंबर दा होए, उमरा करो तरीका पैगंबर दा होए, नफली इबादत करो तरीका मेरे पैगंबर दा होए। अगर कोई फौत हो जाए सदका ते खैरात करो, लेकिन ए ते अंदाज तुहाडा किथों अंदाज आ गया है?
ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਨਾ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਕੁਲ ਆਊਜ਼ੁ ਬि ਰੱਬਿਲ ਫਲਕ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਵज्जो करे, मैं अर्ज करना तेरे को एक सवाल करना। मैं क्या मैं एक मुर्गा लैके आना, एक छुरी ते चाकू लैके आना, ओनू ज़िबा करन लगे मैं पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मैं पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक। ईमानदारी ना जवाब दे जे मुर्गा ज़िबा कर लवांगे, मुर्गा सुन्नत दे मुताबिक ज़िबा होया, उथे की पढ़ना है? मैं यार बुरा काम ते कोई नहीं कीता, बुरा काम ते कोई नहीं ना कीता। मैं कुरान ही पढ़िया है ना, कुरान पढ़ के ज़िबा कीता है। कुर्बानी अगे आएगी, जानवर ज़िबा कर लगे पढ़ लिया जे सूरह यासीन पूरी, और सुनन वाला फौरी तेनू रोकेगा, टोकेगा, कहेगा हजरत साहब ये जगह नहीं कुरान पढ़न दी, कुरान पढ़ना मना नहीं, लेकिन मुकाम जिहड़ा है ये मुकाम ठीक है जे असल मसला। जिथे पैगंबर ने फरमा दिता है कि ए इत्थे पढ़ना है, जो अहादीस अंदर मौजूद है, तुहानू मैनू जरूरत की है सज्जे खब्बे दाएं बाएं जान दी। जिथे मेरे पैगंबर ने जो पढ़न का हुक्म दिता है, बोलो असा ओही कुछ पढ़ना है, ओही कुछ करना है। पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दी जिंदगी उम्मत वास्ते बेहतरीन नमूना है। बोलो ऐरे गैरे दे पिछे लगन दी सानू जरूरत कोई नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सारी जिंदगी जिंदगी उम्मत वास्ते नमूना है। ए माहे शुबान शुरू हो गया, माहे शुबान दे मुतल्लक सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम अंदर अम्मी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, रमजान ते शुबान तो इलावा कसरत दे नाल पैगंबर नो कदी रोजा रख दिया इतना नहीं वेखिया। आप शुबान दे अंदर अक्सर ज्यादातर रोजे रखिया कर दे, इतने रोजे रखिया कर दे कि ऐन जदों दूसरा अशरा शुरू होने दे करीब आंदा, एवें चंद दिन पहले पैगंबर रोजियां नू छोड़ के अगे रमजान अंदर दाखिल हो के रमजान दा इस्तकबाल कर दे, रमजान दी इबादत रमजान दे अंदर रोजे रखने शुरू कर देंदे। माहे शुबान दी यकम तो लेके 30 तक एदी मुकम्मल अगर कोई फजीलत है, सिर्फ एक हदीस दे फजाइल अंदर है, एक हदीस है। तकरीबन मेरा ख्याल 17 हदीसां मैं पढ़ियां ने, 17 हदीसां पढ़ियां ने तकरीबन। शायद मैं भुलदा होवां, एक दो वध या घट हो सकती है, लेकिन 15 तो ज़्यादा हदीसां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹੇ ਸ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਤਬਾ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੰਬਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹ तमाम तर रवायात मन गढ़ते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कोई भी सन्नत नहीं जाती। हर जी अकल ए बंदा वेख के कहेगा ओदी सन्नत नू, यार ए हालत हो गई है उम्मत दी, उम्मत नू केड़े हाल दे ऊपर छड़ दिता है, उम्मत नू केड़े राह ते ला दिता है। माहे शुबान दी सब तो वड्डी फजीलत ए वे, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहदे अंदर अक्सर रोजे रखिया करते सन। लेकिन तेरे मेरे मुआशरे दे अंदर इस वक्त निसफ शुबान 15 शुबान या 14 शुबान दी रात, 15 दी रात, 15 शुबान दी रात नो सारी रात दा क़याम कीता जांदा है। सारी रात दा क़याम इज्तिमाई कुरान ख़वानी कीती जांदी है, दुआवां कीतियां जांदियां ने। प्यारेओ कुरान पढ़ना मना कोई नहीं, दुआवां करनियां मना कोई नहीं, लेकिन शुबान दी 15वीं रात दे नाल इनू खास करना साडा इहदा सवाल है वे। प्यारेओ इहदा पैगंबर दे कोलों सबूत पेश कर देवो। कह लगे हदीस मौजूद है
ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਅੰਦਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। हजरत आयशा फरमांदियां ने मैं अपने हुजरे अंदरों निकल गई मैं चलदी 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 मेरा ख्याल आया, मेरा ज़हन कम किया शायद के अम्मी आयशा किसी और अम्मी आयशा फरमांदियां ने शायद के नबी पाक किसी होर बीवी देखो रात नूं मेरे नालों उठ के चले गए ने। मैं वेखिया कि ये जन्नतुल बकी दे अंदर नबी पाक दुआ कर रहे सन। मैं क्या ये सब तो पहली बात इमाम तिरमिज़ी ने रवायत नकल करन तो बाद फरमाया ये रवायत ठीक कोई नहीं, ये रावी ठीक कोई नहीं, पैगंबर तक सन्नत नहीं पहुंचती। और दूसरे नंबर ते जरा वाज़े तौर ते इस हदीस नो पढ़ो। नबी पाक उठ के चुप करके चले गए। अगर कोई इबादत वाली रात होंदी नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अम्मी आयशा दे कोलों दीन छुपा लिया नबी पाक ने, अस्तगफिरुल्लाह साहब नबी पाक उठ के चले गए ने। अगर कोई खास रात होंदी खास वक्त होंदा दुआवां दी कबूलियत दा वक्त होंदा नबी पाक अबू बकर उमर नूं ना दस दे, अबू बकर उमर दे कोलों छुपा लिया। पैगंबर ने बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, मेरे पैगंबर ने हर मसला दीन दा उम्मत तक पहुंचा दिता है। ये किवें हो सकता है? पैगंबर दे इल्म अंदर बात होए, पैगंबर दे इल्म अंदर होए, ए कम करन अंदर अजर है सवाब है नेकी है। ओ हजरत सहाबा इकराम नूं ना दसिया होए ते सहाबा ने उम्मत तक ना पहुंचाया होए। अगर मुहद्दिसीन ने पैगंबर दी अंधेर वाली रात और पैगंबर दी खलवत दियां बातां हदीस अंदर जिक्र कीता है, इतनी बड़ी इबादत हुंदी ते कदी भी छुपाई जांदी। इस रात नूं जागिया जांदा है, खाने पकाओ वन सवन्ने खाने पकाओ। मौलवी जी की गल है, भैन जी की गल है अज बड़े खाने शाने पक रहे ने, खैर है वे? हाँ पुत अज मेरा जेड़ा फौत होया ना खामद दी रूह ने होना वापस। मैं मिलदा हुंदा है तुहाडी, मिलदा हुंदा है आहो बस आउंदा है ना, आउंदा है। मैं क्या आउंदा है? तुहाडा जिहड़ा खामद फौत हो गया सी ओदी रूह आउंदी है? मेरी भैन रूह आउंदी है? आहे जी आउंदी है, जिहड़ियां रूहां गईयां हुंदियां आउंदियां ने। मैं क्या मैं एक अर्ज़ करांगा, गुजारिश करांगा मेरी भैन जी अगर मैनू अगों चमचा ना मारे तो मैं अर्ज़ करांगा बड़े अदब ना मेरी भैन जी। मैं क्या तेरा खामद अगर सी नेक, अगर सी नेक अल्लाह दा नेक बंदा सीगा वो बख्शिया गया होएगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी सी, तहज्जुद गुजार सी, अल्लाह ने मुआफ़ करता। मैं क्या मुआफ़ कर दिता तो फिर गया किथे? गया किथे? इल्लियीन दे अंदर ओदी रूह नूं पा दिता गया है, जन्नत दे अंदर रूह चली गई है। अल्लाह करे मैं तेरा खामद जन्नत अंदर होवे, कहंदी आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं क्या अगर ते जन्नत अंदर चला गया है उन्हें पाकिस्तान एडी महंगाई च लैन की आउणा है इत्थे? एडी जलालत दे अंदर उन्हें दोबारा की लैन आउणा? जिहड़ा बंदा चला ही जन्नत दे अंदर जावे ओदा आउण नूं दिल करना, ते जिहड़ा जहन्नम अंदर चला जाए साइयां ने आउण देना। किहड़े मसाइल लिया के तुसी अवाम दे अंदर? मैं ते जिहड़ी बिदत नूं पढ़िया अल्लाह दी कसमें ओदे पिछे रोटी ते बोटी दा मसला है। जिहड़ी भी बिदत है ना, जिहड़ी भी बिदत है ओदे पिछे उन्हूं जारी करन दा मकसद है कि मौलवी दे चंगेल दे अंदर लत ना वाजे, किते भुखा ना मर जे। हजरत जी अपनी कबर नूं गंदिया ना करो, खराब ना करो। ए अवाम जिहड़ी है तुहाडे कोलों हक सुनन वास्ते आउंदी है, अपनी कबर ना काली करो, इन्हां दे माल सही जगह ते लवाओ, इन्हां दे पैसे सही जगह ते लवाओ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए ईमान वाले हो अल्लाह दी इताअत करो और इताअत करो प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। वला तुबतिलू आमालकुम, अपने अमाल नू बर्बाद ना करो, अपनियां नेकियां नू ज़ाया ना करो। हर
ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 15 ਸ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਏ, ਪੀਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੜੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੋ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ 2-3 ਧੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਆਹੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਬੇ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਕੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस जामिअ तिरमिज़ी अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे सामने एक बंदे नू छीक आई है ते जदों छीक आई है इन्हें भला की किया है अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने ए छीक तो बाद की पढ़िया है? फरमाया मैं अल्लाह दी तारीफ बयान कीती है ते नबी ते सलाम पढ़िया है। जामिअ तिरमिज़ी दी रिवायत है नबी ते सलाम पढ़िया है। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते ने प्यारियो तारीफ करना मना कोई नहीं, पैगंबर ते सलाम पढ़ना मना कोई नहीं, नबी ते दरूद पढ़ना मना कोई नहीं, लेकिन नबी पाक दी जिंदगी अंदर असाए वेख्या ते सुनिया आपने फरमाया जदों छीक आए ते की पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये हदीस तो साबित नहीं, इस मौके ते रोक दिता है, टोक दिता है, उथे ही रोके है जदों बिदअत जारी हो लगी है। फरमाया ये हदीस के अंदर वो साबित कोई नहीं। हाँ हदीस के अंदर ये लफज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, ए लफज भी साबित है। जदों छीक लए ते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहे ते जड़ा सुनन वाला है वो अगों की कहे यहदिकुमुल्लाह वाई है। हाँ यह है यरहमु यरहमुकल्ला ते अगों फिर जिन्हों छीक आई वो की कहेगा याहदिकुमुल्ला, अगे फिर याहदिकुमुल्ला। रसूल पाक ने फरमाया ए जड़ी छीक अल्लाह पाक ने ना ये ऐसी कमाल दी मशीनरी बंदे च फिट कर दी है, जदों छीक लेंदा है ना
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਿਜਾਤ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਲੇਗਾ, ਯਰਹਮੁਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਹਦੀकुमुल्लाह ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। फरमाया कि ਉਹਦੇ जिस्म के अंदर फिर कोई वो ऐसी बीमारी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ जिस्म चो निकल गई है, जिंदगी के अंदर वो बीमारी ਉਹਦੇ जिस्म अंदर नहीं दाखिल अल्लाह होने देगा। किन्ने फायदे ने हदीस अंदर अगर सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान पाक दी आयत पेश की जाती है 15 शुबान दी रात, कुरान पाक दे नज़ूल दा वक्त है। अल्लाह पाक तकदीरां दे फैसले की करते ने। सूरह दुखान दी आयत पेश की जाती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिम मुबारकतिम इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम। कहते ने कि 15 शुबान दी रात ये ऐसी रात है कि जिदे अंदर कुरान पाक दा नज़ूल होया है। मैं क्या सूरह दुखान दी आयत तो साबित कीता है 15 शुबान दी रात। मैं क्या मैं 30वें पारे नू पढ़ना। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह फरमाते ने इनू असा लैलतुल क़द्र दी रात दे अंदर नाज़िल कीता है। और कुरान पाक दा एक और मुकाम अल्लाह फरमाते ने शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। इस कुरान पाक नो माह रमज़ान दे महीने अंदर नाज़िल कीता है। मैं क्या क्यों कुरान पाक दी गलत तर्जमा ते तफसीर करते हो? अगर कुरान पाक माह शुबान दी रात दे अंदर नाज़िल होया है ते लैलतुल क़द्र की है। कुरान पाक कदों नाज़िल होया है? रमज़ान अंदर। रमज़ान दी केड़ी रात चो है? लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र केड़ी है? 5 ने, लेकिन सानू पता 5 रातां छुपा लईयां गईयां ने। इन्हां 5 रातां दे अंदर लैलतुल क़द्र है। कहते ने इस रात फैसले हुंदे ने, सब कहानियां ने अल्लाह दे बंदो, फैसले तकदीरां दे हुंदे ने। लैलतुल क़द्र दियां रातां दे अंदर जितनियां फजीलतां दित्तियां जांदियां ने ये माह रमज़ान दियां ने। माह शुबान दे अंदर रंग बरंगे खाने बनाना, माह शुबान दे अंदर फिर सब तो बड़ा काम जिहड़ा गैर अखलाकी गैर शरी कीता जांदा है, इहदा नाम रखिया है शबे बरात। बरात शबे बरात ही कहते। शब शब पूरे कुरान अंदर ते ज़ख़ीरा हदीस अंदर लफ्ज़ शब है ही कोई नहीं। शब लफ्ज़ उंजी अरबी का नहीं, ये है ही फारसी का है। पूरा दीन अरबी अंदर है, लेकिन ये विच लिया के फारसी वाड़ दी गई है। हाँ शबरात, शबे बरात। शबरात भी कोई नहीं लफ्ज़। शब ऐसी रात के जिदे अंदर लोगों नू आज़ाद किया जाता है, जहन्नम तो धोखा दिता गया है, लोगों के माल के ऊपर कब्जा करने वास्ते। अल्लाह दे बंदो दीन इस्लाम शरीयत के अंदर ये शबे बरात दा कोई तसव्वुर कोई नहीं। ये बनाया गया है, राज किया गया है, ये अंदर दाखिल किया गया है दीन बना के। फिर इस रात के अंदर बच्चे की करते ने? छुरल ते फड़ बाबे दी माशाअल्लाह धोती दे विच ते बाबा बेचारा 5-7 गालां कढदा है। यार कोई काम है मुसलमानां वाला? चंगे भले बंदे 2-4-5 फट्टे दे बैठे ने, पटाखा चलाया थल्ले सुट दिता, अचानक डर गया। एक गैर अखलाकी काम में, गैर शरी काम में। मैं तुहाडे अगे भी तरला पावांगा मावा भैनां अगे, अगर तुहाडे बच्चे पैसे मंग के पटाके लेंदे ने, तुसां भी मुजरम हो, बच्चियां नूं मुजरम बनांदियां जे। ऐ मेरे वीरियो भराओ अपने बच्चियां नूं रोको। ये मुसलमानां दा महल्ला है, बोलो हिंदुआं ते काफरां दा महल्ला नहीं है, मुसलमाना दा मोहल्ला है। मुसलमाना दा दीन इस्लाम शरीयत दे अंदर ए पटाके ते ए शुरलियां ते ए वाजे ते गाजे इन्हां दा दीन नाल ताल्लुक ए नहीं। ताल्लुक है बिदत, दीन नहीं, इस्लाम नहीं, शरीयत नहीं।
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. پھر آخر کار ایک آخر دے اوپر سوال کر دینے اچھا سارا کچھ ہی بدعت ہے مینوں دسو اساں کر لیا تے حرج کیے اے میں کر لیا کی حرج ہے کی حرج ہے میں اے کام کر لیا حرج کیے تسی کہندے ہو انجے تے انجے حرج کیے میں کہ اگر پوچھنا چاہنا ہے حرج کیے میں صحیح البخاری پڑھاں گا. صحیح البخاری اندر نبی پاک دی حدیث موجود ہے. آپ نے عید الاضحیٰ دا خطبہ ارشاد فرمایا. عید الاضحیٰ دی نماز پڑھائیے خطبہ ارشاد فرمان تو بعد آپ نے دعا فرما کے فرمایا میرے صحابہ جاؤ کرانو جنہاں دے کول جانور تے بکرے چھترے موجود ہے مینڈے موجود ہے جا کے قربانی کرو. صحابہ اکرام جا رہے تھے ایک پروانہ نا نیواں نیواں ہو کے نا نبی پاک دے کول آ گیا محبوب جی میں تے کم نبیڑ آیا محبوب جی میں تے کر آیا میں کہا بھی بعد اندر پھر رش رش پی جانا پھر میں ویلا سا سویرے نماز پڑھی تے ٹائم ہے سی میں جلدی جلدی سی با میں چل آمدے نو پک جائے گا میں کھا لاں گا. آپ نے فرمایا میرا حکم ہے عید نماز پڑھن تو عید نماز پڑھن تو بعد کرنی ہے تو کر آیا گوشت ہو گیا تے قربانی ہے نبی دا صحابی ہے لیکن سنت دے خلاف کر بھول کے لیا علم اندر مسئلہ کوئی نہیں کر لیا بھول کے کر لیا علم اندر مسئلہ کوئی نہیں. آپ نے فوری طور تے فرمایا میرے پیارے گوشت کھا لے تے ادا اجر تے ثواب قربانی نہیں ہوئی قربانی نہیں ہوئی. اے تے اسی کہنے ہاں اللہ اکبر اذان دے وہ ثم صلو علیہ پھر درود پڑھو. تو کہنا حرج کوئی نہیں نبی پاک کہندے یا ثواب کوئی نہیں اس کام عمل اندر ثواب کوئی نہیں. یہی تے گل اسی کہنے ہاں درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن اذان تو بعد پڑھو درود پڑھو ضرور پڑھو مگر اذان تو بعد پڑھو. کہندا میں پہلے پڑھنا میں پڑھنا ہی پہلے. اور نبی پاک نے فرمایا ثم صلو علیہ اذان دے لو بعد اندر درود پڑھو بعد اندر درود پڑھو. جاؤ بغیر اختلاف دے بغیر رولے دے جب تک میرے جسم اندر ساہ ہے جب تک میں اس روح زمین دے اوپر میرا ساہ رہے گا زندہ رہاں گا اس زمین دی دھرتی دے کائنات دے اندر کوئی ایسا انسان آئے اٹھے سرچ کرے پیغمبر دی ذخیرہ حدیث دی اندروں ایک روایت پیش کر دے صرف ایک روایت پیش کر دے جنہی اندر لکھیا ہوئے حضرت بلال نے پہلے نبی پاک تے درود پڑھے ہے پھر اذان کہیے. کوئی ایک روایت لے کے آ جائے پہلے صلاۃ پڑھیے پھر اذان دیتی ہے ایک روایت لے کے آ جائے اللہ دی قسمیں ساری زندگی تیرے قدمہ دے اندر تیرے پیر دھو کے میں پین واسطے تیار ہاں. ایک روایت لے کے آ جاؤ ایک روایت لے کے آ جاؤ اللہ دی قسمیں ذخیرہ حدیث اندر کوئی روایت لے کے آ جاؤ. حضرت بلال اذان کیا کرتے سن تے پہلے کی پڑھتے سن ڈائریکٹ اذان کو اس تو بعد درود پڑھو. اے سنت طریقہ ہے اے اسلام ہے اے دین ہے اے شریعت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین مکمل ہو گیا ہے دین پورا ہو گیا ہے.
हुण किसे मौलवी दी कोई बात दीन अंदर वड़ जाए ते असां मन्नांगे नहीं, मन्नांगे नहीं, कबूल करांगे। दीन ओवे जिहड़ा पैगंबर दी ज़बान चों निकले। कुरान पाक दा एक और मुकाम फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। ओ कायनात दे लोगो जो रसूल पाक देन फखुज़ूहु ओनू लै लवो वमा नहाकुम जितों रोकन मना कर फंतहु रुक जावो। अगर नहीं रुकोगे फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लाह दे कोलों डर जाओ। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। रसूल पाक सल्लम दी ना फरमानी ना कर। पैगंबर दी बात आ जाए मन ले, पैगंबर दी बात दे ओ आगे। अपनी हीर हुजत ना रख चूंके चुनाचे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। हदीस दे अगे सवाल ना कर। समेना व अताना, समेना व अताना। वाह अल्लाह कितना प्यारा पैगंबर सानू महबूब पैगंबर दी उम्मत बना छड़िया है। अल्लाह तुहाडा किवें एहसान दा बदला सी दे सकदे आ। अल्लाह पाक दा सब तो बड़ा तुहाडे और मेरे ऊपर एहसान एवे सानू नबी दा उम्मती बना छड़िया है। वाह मालका तेरियां शाना, वाह मालका तेरे मुकाम ते तेरियां अजमतां। सानू रब चाहता तो यहूदियों के घर अंदर पैदा कर सकता सी, सिखां के घर अंदर, लेकिन अल्लाह पाक दा फजल होया, करम होया कि उस रब ने सानू सोने नबी दा उम्मती बनाया है ते असी उम्मती बनना है। बोलो असां वड्डे बन के पैगंबर दे अगे हीर हुजत रखनी, नबी दी बात आ जाए फौरी मननी है, इतबार यकीन ये रखना है। यही तो अल्लाह पाक ने साढ़े कोलों वादा लिया सी ना, पैगंबर आ जाए अपनी हर किस्म की हीर हुजत नूं बंद करके सोने नबी दे पीछे लग जाना है। वाह मालका तेरियां शाना कैसियां शाना है। वाह शाना रब रहमान दियां, वाह शाना रब सुबहान दियां। बोल पो वाह शाना रब रहमान दियां, वाह शाना रब सुबहान दियां। किवें सते आसमान कलारे ने, किवें जगमग 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 कर दे तारे ने। किवें सते आसमान कलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने। किवें सूरज दे लशकारे ने, किवें किरना चन्न नूरान दिया। वाह शाना रब रहमान दिया, वाह शाना रब रहमान दिया। तू रब नू वाजा मारी जा, जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा। आई रब ओ तू रब नू वाजा मारी जा, जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा। तू रो रो अर्ज गुजारी जा, नहीं लोड़ा किधरे जान दिया। वाह शाना रब रहमान दिया। रब ने सोने नो फलकां ते बुलाया ए। रब ने सोने नो फलकां ते बुलाया सी, नाले खूब मेराज कराया सी।
ਤੋਹਫਾ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਗ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ।